প্রাইমারি আছে, জুনিয়র আছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক খামতি আছে। আমি উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার কথাটা বলি, চা বাগানে বিশেষ করে বঞ্চনা। উত্তরবঙ্গ মানে তো চা বাগান প্রধান, তারপরে কৃষি আছে, পরে ভাই মোবাইলগুলো সাইলেন্ট কর। এবার এইগুলো দরকার, এটা দরকার, যে কারণে মেধাজি দিয়েছে সেটা দেখে গেলেন। এবং তারপরে আমরা একটা নিশ্চয়ই বড় রিপোর্ট নিয়ে করবেন, সেটা নিয়ে আমরা যেখানে যাবার সেখানে যাব, যেখানে তার যে সামর্থ্য, আপনার সামর্থ্য আমি বলছি না যে সবটাই সম্ভব, কিন্তু রাজ্য সরকারের যে সামর্থ্য যেটা আছে নিচের দিকে, তার যে দুয়ারে সরকারের কথা যেটা আজকে বলা হচ্ছে, দুয়ারে সরকারের পক্ষে সম্ভব, আপনি সব জায়গায় করতে পেরেছেন। ঘটনা তো ঠিক, আমি তো কলকাতা শহরে থাকি, আমার বাড়ি হচ্ছে পার্টি অফিসে, আমি তো বললে ফর্মটা পেয়ে যাবো, কিন্তু আপনার বিভিন্ন জেলায় যে দুয়ারে সরকারটা পৌঁছে দিতে হবে, সেই জায়গাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই, তার গাড়ি ঘোড়া নেই, এটা বাস্তব। এই এখানে বলছি, বঞ্চনা এটা বলছি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সেটা আমরা বলেছি, লোকদেরকে বলিনি, তা নয়, বলে এসেছি আমরা। এটা যদি সাবস্ক্রাইব করবেন, পলিসিতে বলবেন। আর তৃতীয় যেটা, আমরা গতকাল কলকাতা শহরে বসেছিলাম, প্রথমে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিস্টদের সঙ্গে বসে, দিল্লিতে যে সারা ভারতবর্ষে দিল্লির যে শুরুতে যে ফার্মার আন্দোলন, কৃষকদের যে আন্দোলন, তার পাশে আমরা দাঁড়িয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী 1 জানুয়ারি আমরা ফার্মার্সদের বেড়ে দিয়ে যাদেরকে বড় বড় করা হবে কর্পোরেটদের, সেই আদানি আম্বানির প্রোডাক্টকে আমরা বয়কট করবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগামী 1 জানুয়ারি কলকাতা শহরের ধর্মতলায়, লেনিন মূর্তির তলায় আদানি আম্বানির যত প্রোডাক্ট, সেই প্রোডাক্টকে বয়কট করবো, সেগুলো আমরা পুড়িয়ে দেবো, জ্বালিয়ে দেবো। মানুষকে বলবো এদের প্রোডাক্ট আর ইয়ে করবেন না, ব্যবহার করবেন না, কারণ এরাই আজকে দেশটাকে খাওয়ার জন্য বড় বড় হা করে বসে আছে। আপনারা দেখেছেন হলমার্ক কলকাতা শহরে বড় গোডাউন করেছে, আদানি বিরাট বিরাট গোডাউন করেছে 100 একর জমি নিয়ে, সেইখানে যাতে পৌঁছাতে না পারে তাদের বিরুদ্ধে একটা প্রতীকী আন্দোলন আমরা 1 জানুয়ারি শুরু করছি। উত্তরবঙ্গ মানুষ আপনার দায়িত্ব নিয়েছেন, সেটা করবেন। এইটুকু বলে আপাতত আপনার না, একটা জিনিস করেন, যে পুড়িয়ে দেবেন, জ্বালিয়ে দেবেন, এটা কি কিনে জ্বালাবেন না কেড়ে নিয়ে জ্বালাবেন? কেড়ে নিয়ে না, আমাদের কাছে যা যা আমরা কিনে জ্বালাবো, কারোর কাছে কিনে নেবো না। আমরা স্বদেশী আন্দোলন যেটা হয়েছিল, মানে কিনলে পরে তো তার তো একটা মার্জিনাল প্রফিট হবে, মানে আদানির মানে তার প্রফিট করবেন না। বাড়িতে তো থাকে জিনিসটা বয়কট করা হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলন যেটা দেখেছিলেন, স্বদেশী আন্দোলন যেটা চিন্তা করে জানি না, স্বদেশী আন্দোলন যেটা হয়েছিল আমরা পরে, এখন দ্বিতীয় স্বদেশী আন্দোলনের, দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের লড়াই একটা শুরু হয়েছে। মারেঙ্গে লড়াইকে তো জিতেঙ্গে, নেই লড়াইকে তো মারেঙ্গে, তো আমার লড়াই করে জিতবো, সেই জন্য আমরা লড়াই শুরু করছি, লড়াইকে জিতেঙ্গে, এটাই আমাদের বিশ্বাস, এই বিশ্বাসে আমরা এগোচ্ছি। ঠিক আছে, थोड़ी सी देर हो गई, हिंदी में बोलो? हाँ, हिंदी में। थोड़ी सी देर हुई, माफी चाहते हैं। अभी हम लोग कलकत्ता से ट्रेन से उतरे और अब सब लोगों को लेकर खुशी हुई। बंगाल में तो चुनावी माहौल होगा, आप भी उसके तहत सवाल पूछेंगे भी शायद, लेकिन हम लोग गैर चुनावी राजनीति से हैं। और मैं अभी तो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, गाजीपुरा बॉर्डर, शाहजहां बॉर्डर रहते हुए, वहाँ रहते हुए यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा जो सबसे बड़ा व्यापक अलायंस अभी बना है, जिसके पहले हमारा ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय बना था, इन दोनों की कोर कमेटी के सदस्य के रूप में आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है वो ही इस देश को अन्न सुरक्षा दे सकता है और इस देश के खेती और खेतीहर को बचा सकता है। अगर ये 3 कानून जो लॉकडाउन में थोपे गए हैं, जिसमें न संसदीय प्रक्रिया चली है, न ही किसान संगठनों से या विपक्षी दलों से कोई बातचीत की गई है, अध्यादेशों के द्वारा कानून लाना मोदी सरकार की खासियत बनी है। ऐसे ही अध्यादेश उन्होंने लाए थे, भूमि अधिग्रहण कानून, जो कि हमने बहुत लड़कर, बंगाल इसका गवाह है, लाया था। लाने के लिए केंद्र सरकार को तैयार किया था 2013 में, उसको बुनियादी परिवर्तन के तहत इन्होंने 3 अध्यादेश लाए थे। लेकिन हम लोगों ने भूमि अधिकार आंदोलन बनाया 300 संगठनों का, और बहुत लंबी लड़ाई चली देश भर, संसद मार्ग बहुत बार गिरे, आखिर वो अध्यादेश वापस करवाए। इन्होंने दूसरे मार्ग से बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में अपने अपने कानून लाकर उस 2013 के कानून को नजरअंदाज करने की साजिश आज भी चलाई है। लेकिन ये जो 3 कानून थोपे गए हैं, ये किसान विरोधी कानून,
और ये कॉर्पोरेट्स के पक्ष में है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। जो कानून जानता है, जो कानून पढ़ता है, वो समझ सकेगा कि इन कानूनों से तीनों रास्ते खुल गए हैं कॉर्पोरेट्स की मुनाफाखोरी और जमाखोरी बढ़ाने के लिए। मुनाफाखोरी बढ़ेगी क्योंकि एमएसपी जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी कहने वाले ये जानते हैं कि कॉर्पोरेट्स की निजी मंडियां खुलेगी तो वो अपना गठबंधन करते हुए एमएसपी को गिरा देंगे। एमएसपी तो केवल 23 फसलों में है देश में, न चाय में है, न दूध में है, न फल में है, न सब्जी में है। तो लॉकडाउन में 2 रुपया केला और 2 रुपया टमाटर बेचने वाले हमारे किसान, हमारे पहाड़ी अनाज बेचने वाले आदिवासी, वनोपज जो भी प्राकृतिक उपज है, इनका क्या? ये सब लोग गरीब नहीं है, ये धनिक है प्राकृतिक संसाधनों से और मेहनत से। लेकिन उनकी ये मेहनत और उनके संसाधन जो इंडिस्पेंसिबल कैपिटल है, जिसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अगर आपको खाना रोटी है, केवल फॉर्चून तेल नहीं पीना है, तो आपको कोई बचा नहीं सकता। अगर खेती खत्म होगी तो मुनाफाखोरी और बढ़ाने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लाया। क्या जरूरी थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? खेतीहर अगर पूंजी निवेश नहीं कर सकते हैं तो खेतीहरों को आप सही दाम दे दो। वो दाम की बात, वो एमएसपी की बात, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात, ये 3 कानून में कहीं भी नहीं है। आंदोलन शुरू होने के बाद घोषणा करना एक बाजू और अवमानना करना दूसरी बाजू, ये हमने नर्मदा आंदोलन में 35 साल और नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स ने 25 साल भुगता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना विवेक अपनी जगह पे है और अपना विचारधारा अपनी जगह पे है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, जिसमें अगर विवाद होगा तो कोर्ट नहीं जा सकते, ये कहा गया। बाद में संशोधन जो प्रस्तावित है वो क्या कह रहा है मैं आपको बता दूं। लेकिन ये इतनी हिम्मत करते हैं कि संविधान ने दिया हुआ अधिकार अब यही तो बचा हुआ है हमारे हाथ में, जो लेकर मैं चलती हूँ। किस कानून की बात करें कोर्ट में खड़े रहने के लिए जहां मैं लड़ती हूँ। लेकिन ये कानून कहता है कि आप किसी भी अधिकारी के खिलाफ, किसी भी और अन्य व्यक्ति के खिलाफ अगर विवाद हुआ तो कोर्ट में नहीं जा सकते। ये संविधान के खिलाफ है। ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इनके एजेंट्स भेज सकते हैं। तो एक बाजू मंडियों में अड़तीय जो छोटे व्यापारी हैं उनके भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं, उनको बाजू में हटाने के लिए निजी मंडियों की बात कर रहे हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए किस प्रकार के एजेंट्स भेजेंगे इसका भी सोचना जरूरी है। आज अडानी अंबानी ने जगह जगह पर खेती अपने कब्जे में ली है। वो समुद्र किनारे की जमीन हो या भर खेती से लहलाती हरी भरी जमीन हो, ये हजारों एकड़ एक एक राज्य में लेने पर तुले हुए व्यक्ति, हम क्योंकि गुजरात के किसानों के साथ भी लड़ते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के, और एनएपीएम तो बिहार, बंगाल सभी के किसानों के साथ पहले। तो तीसरा कानून जो है जिसमें जमाखोरी की छूट दे रहे हैं 1955 का, बंगाल ही गवाह है अकाल का, और उस समय 20 लाख लोग मर चुके थे, मृत्यु को अपनाए थे। और उसके बाद ये 1955 का कानून आया जो बदलने की हिम्मत मोदी सरकार कैसे कर रही। अत्यावश्यक वस्तुओं से खाद्यान्न निकालने की हिम्मत, तो क्या कंप्यूटर और मोबाइल खाकर जिएंगे लोग? और उसकी जमाखोरी की यानी लूट की छूट ये बड़े बड़े कंपनियों को देना। और अभी कहीं सोनीपत हरियाणा में 4 गोडाउन के लिए 100 एकड़ जमीन थी, तो गुजरात के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने जिसकी पोल खोल की है, अब तक पहुंचा कि नहीं पता, उसके लिए तो हजारों एकड़ जमीन देगी। अडानी किस प्रकार के हैं कि हम जानते हैं। ये जमाखोरी से वो कितना मुनाफा कमाएंगे, ये सवाल है। और उन्होंने अभी तक कितना मुनाफा कमाया है, इसके आंकड़े पूरे अब जाहिर है। लेकिन ये जब अनाज उनके गोडाउन में भरेंगे तो ये एफसीआई के लिए नहीं होंगे। आज जो गोडाउन वो बनाते हैं वो एफसीआई को रेंट पे देते हैं। उसके पोल खोल भी एक सीएजी रिपोर्ट में सीधी सरल आई है कि 2000 से अधिक पर टन
ये केवल स्टोरेज का रेट लगाकर अपना मुनाफा उससे भी कमाते हैं। अब तो उनके खुद के गोडाउन्स बनेंगे। जिस जर्नलिस्ट ने उनकी खबर ली, आप डरेंगे नहीं, ये विश्वास के साथ बोल, उसकी हत्या हो गई। हम लोग सिंघू बॉर्डर में होते हुए ही ये खबर आई, पूरे किसान विचलित हो गए, पर वो डरे नहीं। अडानी और अंबानी को पंजाब से लेकर जहां मानसा में मैं गई तो पूरे रिलायंस के पेट्रोल पंप और टावर्स तक इनका घेरा था, उनके मॉल्स को उनको घेरा था, उनकी जियो सिम पूरे पंजाब में निकली थी। अब तो महाराष्ट्र के हमारे 1 करोड़ लोगों ने कुछ ही दिनों में, हफ्ता भी नहीं लगा ऐलान करने के बाद, जियो सिम निकाली। तो जियो ऑफर करने लगती है कि हम फ्री देंगे पूरे पंजाब को। लेकिन आपको मालूम है कि इन्होंने कितनी कमाई की है? गौतम अडानी की कमाई तो रोज के 384 करोड़ रुपए। हमारे खेत मजदूर जो भी किसान हैं, उनको रोज के 384 रुपए मिलते हैं। चाय बागान के मजदूर को 176 के ऊपर जाना संभव होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जब आएंगे खेती के क्षेत्र में, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में इन्होंने जो करके रखा है, जिसके कारण इनके बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं और 15,000 स्कूल नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूल सरकार बंद करने जा रही है। मतलब बस अभी मोदी जी की कुर्सी अडानी अंबानी को देना बाकी है, बाकी सब कुछ दे रहे हैं। न केवल एयरपोर्ट्स, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, अब विद्युत परियोजनाएं भी। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अभी अभी चुनाव और खरीदी बिक्री और फिर चुनाव सब होने के बाद ये घोषित किया है कि हम 1 रुपया लीज पर सार्वजनिक विद्युत परियोजनाएं प्राइवेट कंपनीज को दे देंगे। तो इसी से तो ये कमा रहे हैं। हमारे यहाँ अडानी का प्रोजेक्ट के लिए जो नया कानून बनवा लिया, रेल डक्ट कानून, जिसमें मुआवजा न देते हुए जमीनें हासिल करने की एक प्रकार से लूपहोल लगा। लेकिन अडानी की संपत्ति भी 2014 से 2020 में कितनी बड़ी आप देखिए, 0.5 लाख करोड़ की थी तो 1.4 लाख करोड़ की हो गई 6 साल में। पर ये आंकड़ा भी मुझे सही नहीं लगता है। और अडानी क्या है, मैंने पता है उनके सीईओ के और मेरी केसेस 18 साल से चली है, जब साबरमती आश्रम में हमला हुआ था, शांति मीटिंग में गुजरात के दंगों के बाद। ये जो है मुकेश अंबानी, इनकी तो हद हो गई है। आज अनिल अंबानी का कुछ घोटाला आया है, ऐसा मैंने जस्ट एक लाइन पढ़ी, समय नहीं मिलता है। और व्हाट्सअप की क्या जरूरत है, व्हाट्सडाउन देखना जरूरी है। वो केवल ऐप नहीं है, वो आपको अप कर देखने के लिए मजबूर करता है। लेकिन ये जो है मुकेश अंबानी की रोज की कमाई अगर 1085 करोड़ रुपए है, तो भाई मजदूर का मिनिमम वेज भी 1085 रुपया करो। गैर बराबरी के खिलाफ है ये किसान आंदोलन। जो आर्टिकल 39 के तहत आप देखेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, नॉन जस्टिसएबल है, मतलब कोर्ट में जाकर नहीं कह सकते कि इसका देखो उल्लंघन हो रहा है। ये दुर्दैव है। वो नॉट शब्द संविधान से हटाने की जरूरत है, सेक्युलरिज्म और समाजवाद हटाने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें आर्टिकल 39 में जब ये लिखा है कि अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मुट्ठी भरों के हाथ में संपत्ति केंद्रित न हो। कैसे इनके हाथ में संपत्ति, देश की सार्वजनिक उद्योगों से लेकर सब कुछ बेचा जा रहा है, ये हमारा सवाल है। और इसलिए किसान तो लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। आज 2 बजे हमारी जो कोर कमेटी है उसके तरफ से प्रतिनिधि मंडल जो जा रहा है, इसमें 32 तो किसान संगठन पंजाब के ही है जिनको इनकी आमंत्रण देते हैं। और हमारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय ये कहता है कि इसमें कोई प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है। इसलिए हमारी तरफ से हनन मौला जी जो 8 बार सांसद रह चुके हैं, और कविता कुरुगट्टी जी जो रिसर्च करती है पूरा एग्रीकल्चर पर, वो 2 लोग जा रहे हैं। लेकिन कुल 40 लोगों का जत्था आज साथी बातचीत के राउंड में जा रहा है। मन की बात कुछ भी हो, मनमानी की बात नहीं चलेगी इन कंपनियों की, जो कि राशन व्यवस्था बर्बाद कर देगी। इसलिए सवाल केवल किसानों का नहीं है, सवाल हर उस नागरिक का है जो धनिक होते हुए भी अपनी शक्ति, वही उत्पादक है, वही बिल्डर्स है। निर्माण मजदूर बिल्डिंग नहीं बनाते तो क्या बिल्डर बनाते? कारखाने का माल कौन उत्पादित करता है? लेकिन कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। ये नारा लगाकर हम लोग हर क्षेत्र में जो लड़ने वाले जन आंदोलन है,
ये मानते हैं कि अब ये गैर बराबरी दूर करने का काम ये किसान करेंगे और उनकी अगुवाई के साथ श्रमिक भी करेंगे। कल मैं BSNL के 4600 ठेका मजदूर केवल कलकत्ता BSNL में है या बंगाल, पूरे बंगाल का आंकड़ा बंगाल का 5 जिलों के प्रतिनिधि आए थे, रास्ते पर ही बैठे थे। क्या हालात है उनका, 14 से 18 महीने की सैलरीज नहीं मिली है। करीबन 20 लोगों ने आत्महत्या की है, उसको हत्या ही कहना चाहिए। जैसे हर 17 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, 44 तो करीबन इस आंदोलन के 1 महीने में शहीद हुए हैं, जिसमें अमरजीत वो अधिवक्ता भी है जिन्होंने खुद को गोली मारी, और वो बाबा संत रामदेव सिंह जी भी है जो हमारे आंखों के सामने ब्लैंकेट्स बांटते थे। और केवल आंदोलनकारियों को नहीं, वहां लंगर सेवा हो, ब्लैंकेट देने की बात हो कि छाछ बांटने की बात, दिल्ली के बस्ती बस्ती की महिलाएं अपने बच्चे लेकर आती थी और उनको कोई भी नकारता नहीं था, न जात न पात न पंथ न लिंग भेद। और ऐसी सेवा देने वाले कौन है? खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। अरे मानसा से ही आए हैं, सिरसा हरियाणा से आए हैं, जहां मैं जाके उनको सबको देख और मिल चुकी हूँ, सभाएं एड्रेस कर चुकी हूँ। आज उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहने की जो साजिश है उसके सामने हर हिंदुस्तानी ने लड़ने की जरूरत है। वो तो हिंदुस्तानी है ही, न वहाँ चीन का न पाकिस्तान का पैसा है। इस अडानी के नुमाइंदे ने हम पर भी आरोप लगाया था कि हम फॉरेन फंडिंग लेते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर वो हार गए और प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये जजमेंट दिया और उनको कॉस्ट पे करवाई। ये जो हकीकत है इन कंपनियों के प्रचार प्रसार की, वो एक बाजू रखते हुए भी मैं कहती हूँ कि आज जो छठी राउंड है चर्चा की, जिस समय दुर्दैव से वो 29 को लगने वाली थी, वो निश्चित नहीं था और मैं यहाँ गई, लेकिन हम जानते हैं कि 5 राउंड में इन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। अमित शाह जी गृह मंत्री को लाया, जबकि कृषि मंत्री से बातचीत 5-4 बार हो चुकी थी। हमने तो हर बार घोषणा दी है कि सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, लेकिन फिर भी बातचीत को नकारा नहीं। ये हर लेटर में लिखते हैं कि आपको खुला होना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। इन्होंने 20 दिसंबर से अभी 3-4 पत्र लिखे और आज बातचीत हुई है। हमने कभी भी बातचीत नकारी नहीं, पर इस बातचीत से क्या निकलेगा ये सबसे महत्व का सवाल है। तीनों कानून वापस लेना और बिजली बिल जो अभी कानून नहीं बना है, जिससे कि बिजली महंगी हो जाएगी तो किसान और घाटे में चला जाएगा। डीजल से गया है, बीज से गया है, खाद से गया है, तो ये मांगे हैं। और इसके साथ साथ MSP पर नया कानून जाहिर करना चाहिए। हमारे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय ने मंदसौर में मध्य प्रदेश में 6 हत्या होने के बाद ये अलायंस बनाया और 2 कानून तो आज भी लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए हुए हैं। एक राजू शेट्टी सांसद महाराष्ट्र और के रागेश सांसद केरला की तरफ। और इसमें हमारा साफ कहना है कि किसान की परिभाषा में खेत मजदूर, पशुपालक जो दूध बेचता है, वनोपज पर जीने वाले आदिवासी, कुक्कुट पालक हो कि मछुआरा हो, सभी सम्मिलित होने चाहिए। ये व्यापक दायरा है प्रकृति पर जीने वालों का, उनमें और ये पैरासाइटिक एग्जिस्टेंस वाले, इनमें जो गैर बराबरी है वो अगर मिटेगी नहीं तो आप कितने भी दान धर्म करते रहो, ये कभी भी देश समता और न्याय के सिद्धांत पर सबकी भूख प्यास, रोजी रोटी, कपड़ा मकान नहीं पूरी कर पाएगा। इसलिए ये किसान आंदोलन महत्व का है। आज हमारे जगह जगह पर राज्य में संघर्ष चल रहे हैं। चित्र नहीं भी आता होगा, पर कल NAPM की कलकत्ता में जो विशेष बैठक हुई जिसमें सुजातो भद्र जी से लेकर कई सारे लोग थे, तपस सेन भी थे, मिताव मित्र तो थे ही, कल्याण सेन गुप्ता, अभिक शाह जी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे, लेकिन सभी संगठनों ने मिलकर ये तय किया है कि 1 जनवरी को धर्मतला के पास के स्क्वायर पर ये अडानी अंबानी के प्रोडक्ट्स को खत्म करेंगे। एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम है आजादी आंदोलन में जैसा होता था विदेशी उत्पादनों की होली। हम लोग सब कुछ विदेशी छोड़ेंगे तो ये भी सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन
एक एक करके जाना चाहिए। शुरुआत तो ए से ही होती है, तो A को हम पहले लक्ष्य बनाएंगे, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा धन दौलत इस देश में बढ़ी है और उनका राजनीतिक आर्थिक हस्तक्षेप भी सभी कानूनों को बदलने में तुला हुआ है। और इसमें खास उल्लेख करना पड़ेगा, क्योंकि BSNL कर्मचारियों की बात भी उठाने के लिए मैं आई थी। वो बार बार फोन करके फोन पर रोते थे। कल भी आंखों के सामने भले तगड़े दिखने वाले पुरुष रो पड़े थे। मैं कह नहीं सकती कि उनकी हालत क्या है, पर यह हालत केवल BSNL की नहीं है। BSNL के साथ साथ 50 तक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसका कंट्रीब्यूशन अगर आपको बताऊं तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि 2018 तक भी ये कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। ये जो पूरे पब्लिक सेक्टर की यूनियंस की एसोसिएशन है, उसने ये पूरा निकाला हुआ है कितना हुआ। इनमें इन्वेस्टमेंट भी तब तक होती रही ताकि प्रॉपर्टी बढ़ती रही और फिर इनको हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया 2014 से 2018-19 तक। इसीलिए रुकी मोदी सरकार कि और बढ़े और फिर हस्तांतरित किए जाए। और ये कितना है ग्रॉस रेवेन्यू इनका 2017 में होता था 21,54,000 करोड़ और वो एक साल भर में बढ़ा 18% से 25,43,000 करोड़। इनकी इन्वेस्टमेंट इनमें करने देते गए। उन 2018 में थी 14,31,000 करोड़, 14.65% से बढ़ते हुए 2019 तक हुआ 16,40,000 करोड़। इनकी पूरी प्रॉपर्टी देखिए, इनका फॉरेन एक्सचेंज के अर्निंग्स देखिए, 5,22,256 करोड़ से ये बढ़े 6,64,000 करोड़। इतनी कैपेसिटी और इनके एम्प्लॉइज कितने? केवल BSNL की एक बात ले ले तो अभी 78,500 श्रमिकों को VRS लेने के लिए मजबूर किया है। कैसी कैसी साजिशें चलाई। जिन्होंने लोन्स लिए उनके लोन के अमाउंट अभी सैलरी से डिडक्ट करते हुए बैंक में नहीं भरी, जिस बैंक से लोन लिया था इनसे इंटरेस्ट चालू है वसूल करना और अमाउंट सैलरी जो भी थोड़ी बहुत मिलती है उससे निकालना डिडक्ट करना चालू किया। ये लोग थक गए और VRS भरने के लिए मजबूर हुए। 55,000 बचे। इसमें ठेका मजदूरों की कल जो सभा हुई, क्योंकि BSNL ठेका मजदूर बचाओ कमेटी ने मुझे निमंत्रण दिया था, कई सारे और 2-3 यूनियंस भी वहां होंगे, कम अधिक सदस्यता होगी। हम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल के सदस्य हैं, इसलिए यूनियन विरुद्ध यूनियन का यहाँ मामला ही नहीं है। यहाँ यूनियंस विरुद्ध ये जो नॉन यूनियनाइज्ड पावर होल्डर्स है उनके खिलाफ का मामला है। इन्होंने 44 श्रमिकों के कानून कैसे रखे। मैं भी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में लड़ती हूँ। मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल मिल वर्कर्स की हमारी यूनियन है। 1-2 मिल्स बिरला की बेची गई, अवैध निकली। उन्होंने हमको मिल्स देने का वायदा किया, आखिर में वो पलट गए। एक आध यूनियन ने भी पलट खाई इसलिए, पर 92% श्रमिक अड़े हैं। पगार देना पड़ रहा है, वेतन देना पड़ रहा है, क्योंकि ये अगर ठेका मजदूरों की बात अगर इन सब में आप देखेंगे, प्राइवेट मिल्स हो कि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो, तो इनको तो कोई स्थान और सम्मान ही नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 का था उसको रद्द कर दिया गया। आपने देखा, मैंने तो उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर से सबसे ज्यादा मजदूरों को पूना स्टेशन से रेलवे में बिठाया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खाड़े जी और बंगाल सरकार बहुत ही साथ दे रही थी हमारी। केंद्र सरकार गूगल कर रही थी। वो कभी अचानक ट्रेन देते थे और कहते थे कि मुंबई में 4 घंटे में ट्रेन भर दो। ये क्या संभव था? हमारे बस्ती में ये मजदूर रहने के लिए आए थे, अलग अलग सिटीज विद इन सिटीज से, और वो संभव नहीं था कि वो तत्काल आए और ये डिस्टेंसिंग वो डिस्टेंसिंग, सोशल तो हम मानते ही नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी नहीं रख पाते थे। आज भी 1 लाख किसान वहां कोई मास्क नहीं पहनते, एक भी कोरोना ग्रस्त नहीं। पूरी नर्मदा किनारे के गांव में एक भी कोरोना ग्रस्त नहीं है, तो आप मेरे आगे से भी डरना नहीं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये ऐसा खेल जो नोटबंदी के समय और फिर लॉकडाउन के समय किया, वो कैसा था, और इसका पूरा दोष केंद्र सरकार पर ही जाता है।
और वही केंद्र सरकार ने अंतरराज्य श्रमिकों का कानून 1979 का 1988 से हम लोग गन्ने काटने वाले मजदूर हो कि और हो, हम उस कानून को लेकर लड़ते आए। अब उन्होंने वो कानून खत्म किया। 2008 में नंदीग्राम संघर्ष के बाद हम लोगों का दिल दहला गया था। हम लोग जंतर मंतर पर ही बैठे थे 165 संगठनों के साथी, और 2008 का कानून हमने वहां मसौदे में हमारा सहभाग देते हुए बनवाया। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स एक्ट, आज वो भी खत्म हो गया। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 खत्म कर दिया, जिसके तहत सेस इकट्ठा करते थे बिल्डर से। महाराष्ट्र का उदाहरण दे दूं तो 7000 करोड़ इकट्ठा हुआ, 700 करोड़ में खर्च नहीं। पर आज बिल्डर्स और वर्कर्स उत्तर दिनाजपुर के हो, दक्षिण के हो कि मालदा के हो, सभी को बिठाते समय हमने उनकी जानकारी लेकर, आज भी हम पीछे पड़े हैं, वो चाहे गोदरेज की सिटी हो या नांदेड़ की सिटी हो महाराष्ट्र। लेकिन साथियों, अब 44 कानून खत्म होने के बाद क्या हम लोग यही लेकर कोर्ट पे खड़े हैं? कानून का आधार ही एक प्रकार से खत्म करके 4 कानून नहीं बनाए, कोड्स बनाए। जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव में होता है, कोई उल्लंघित करता है, कहाँ कोर्ट में केस लड़ाई जाती है। ये कोड्स तो कमजोर लीगल बेसिस है और ये एक और साजिश है, और इसमें भी श्रमिक संगठनों का पूरा विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के बीएमएस भी कहीं ना कहीं चुपचाप आकर विरोध में शामिल होती है। ये आपको मैं कहती हूँ, कहीं तो उनकी यूनियन ही रहेगी नहीं। नॉन वर्कर्स को यूनियन में पदाधिकारी होने का यही इन्होंने खत्म कर दिया प्रावधान। तो ये जो वर्कर्स का ये है, उसके कारण ठेका मजदूर और आम कर्मचारी भी, प्राइवेट में कंपनियों के हो कि पब्लिक सेक्टर कंपनियों के हो, आज पूरा अन्याय भुगतने वाले हैं। ये कहते हुए मैं आगे जाकर ये कहूंगी कि उत्तर बंगाल में आने से चाय बागान की परिस्थिति नहीं देखते तो और क्या देखते। सबसे पहले वही देखना था, क्योंकि जब पासारुल भाई के नेतृत्व में यहाँ के आदिवासी ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद कलकत्ता पहुंचे थे भर बारिश में, तो ममता जी ने हमारे प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करके, पहले उनकी भी हिचकिचाहट थी कि इतने साल पुराना मुद्दा कैसे उठाए, लेकिन हमने समझाया कि भाई अगर मंदिर मस्जिद पहले पीढ़ियों पहले की बात उठ सकती है तो ये क्यों नहीं उठ सकती। आप केवल इतनी जांच करवा दो कि जमीनें वैध रूप से ली गई है कि अवैध रूप से। तो वो जांच उन्होंने एसडीएम से करवाई और हमें खुशी हो गई कि कम से कम 1000 एकड़ जमीन वापस, 2000 एकड़ वापस हो गई। अभी मैं देखने और मिलने जा रही हूँ, फोन पर तो मिलती रहती हूँ, लेकिन ये निश्चित है कि ये एक बहुत ही महत्व का कदम तृणमूल कांग्रेस ने उठाया। आज हमारी उनसे बहुत सारी अपेक्षा है, और वो केवल चुनाव के मद्देनजर नहीं है। अब योगायोग से चुनाव है पर कोई कल नहीं है दरवाजे में, तो मैं चुनावी माहौल में नहीं आई हूँ। मैं तो गैर चुनावी राजनीति के तहत हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के द्वारा ये कहना चाहती हूँ कि चाय की भी एमएसपी होनी चाहिए, और चाय बागान के मजदूर जो कि कम से कम 30-35 बागान बंद पड़ी है, उस बागान के मजदूर, जैसे ढेकला पारा हम गए थे, बंडा पानी की बात हमने सुनी, हम गुंजी पारा में गए, रात को 10 बजे तक हमारी जो मीटिंगें चली, उसमें महिलाओं की खास आक्रोश की बात जब हमने सुनी तो हमको लगा कि जय जोहार स्कीम आई है, उसमें तहत पेंशन 1000 रुपया तो कम से कम मिल रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज नहीं है, अनप्रोटेक्टेड होते हैं, ये मैं बार बार वो शब्द गलत इस्तेमाल किया जाता है, और उनकी संख्या वर्कर्स में 95% है देश में। तो उनको कम से कम 1000 रुपया पेंशन अभी घोषित की है, तो चलो वो तो हर एक को मिलनी चाहिए। जबकि स्वास्थ्य सुरक्षा की बात स्वास्थ्य साथी स्कीम से आई है, तो वो हर एक को मिलनी चाहिए। इन स्कीम्स का स्वागत करते हैं हम लोग, और वो महिलाओं के द्वारा भी स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि वो जो है क्या आत्मनिर्भर भारत नहीं, आयुष्मान भारत योजना, उसकी हालत तो हम देखते हैं। 5 लाख मिलने वाला है, ये मालूम होते ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स 5 लाख का ही बिल्स बनाते हैं, 3 दिन भी आप रहे तो। और ये निजीकरण के ही कारण हुआ है स्वास्थ्य क्षेत्र में कि कोरोना टेस्ट भी मुफ्त नहीं देते हैं करोड़ों रुपए कमाने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो हमको सरकार बचानी नहीं है, सरकारी जिम्मेदारी बचानी है।
सरकारी स्पेस बतानी है। अब उसमें तो ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करते हुए इन्होंने किसान कानूनों को लाए। आपको मैं पढ़ के बता सकती हूँ, जिस एंट्री 33 ऑफ यूनियन के तहत ये कहते हैं कि हमको अधिकार है, वो 33 एंट्री क्या है आप खुद पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन लेकर। एंट्री 14 है कृषि, जो स्टेट लिस्ट में, उसके तहत राज्य का अधिकार ये नकार रहे हैं और उनके मंडी कानूनों को ये बदल रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। तो उसी प्रकार से हर स्कीम प्रधानमंत्री के नाम, ये कहां से आई गई? ऐसी तो बात पहले नहीं होती थी, पर अब वो स्वास्थ्य के नाम और जुगाड़ के नाम आई है तो हम खुशी है। लेकिन उसका लाभ हर चाय बागान की महिला पुरुषों तक पहुंचे, ये हमारा आग्रह है। और ये तभी पहुंचेगा जबकि आधार कार्ड की गड़बड़ियां, कुछ कागजातों की कमियां, इसमें भ्रष्टाचार नहीं। हमको जो जानकारी है कि सब लोग मानते हैं कि ममता दीदी ने तो ये कर दिया, लेकिन भाई स्थानीय स्तर पर कहीं न कहीं पैसा मांगा जाता है आधार कार्ड में संशोधन करने में भी। तो हमारा आग्रह है कि आज की पश्चिम बंगाल की सरकार पहले तो भ्रष्टाचार से हो रहे अत्याचार को तत्काल बंद करवाए, ताकि अच्छी योजनाओं का पूरा पालन और अमल हो पाए। जहाँ तक चाय बागान के बंद पड़ने का सवाल है, हम लोग इतने सालों से ये सवालों को देखते हुए, हमारे अमिताभ दा, हमारे पास अरुण भाई, इनने काम रचनात्मक कार्य में अमिताभ दा ज्यादा है। इन्होंने धान खरीदा हजारों चाय बागान के किसानों ने। तो आज जो चाय बागान बंद पड़ी है उसमें कुछ प्राइवेट बागान होल्डर्स आए, वो लैंड होल्डर्स नहीं है, वो बागान होल्डर्स है। वहां मेंटेनेंस और वो बुशेस, वो छोटे छोटे पौधों की व्यवस्थित रक्षा करके, छटाई करके उसको बचाना था। जैसा कई सारे नांगलदा चाय बागान अच्छी तरह से चल रही है। जहां भी कोई राजस्थान के मालिक है, उन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट डाला और चलाई तो हो गया। लेकिन आज जो बागान बंद पड़ी है उसमें कुछ प्राइवेट प्लेयर्स खेल रहे हैं और वो 100 से 150 रुपया प्रतिदिन का दे रहे हैं, जो मिनिमम वेजेस में नहीं आता। खैर वो एक्ट भी खत्म हो गया, लेकिन नहीं आता, कुछ तो कोड में है। और महिलाएं अधिक काम करती है। तो आज उन्हीं वर्कर्स को बागान बंद करने के कारण और जहां चल रही है वहां कम से कम मजदूरी मिलने के कारण कहीं अवैध पत्थर की खदानों में काम करना पड़ रहा है। ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारी रहे सालों से, जिन्होंने 8 दिसंबर के भारत बंद में भी हिस्सा लिया और कल भी 1 जनवरी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि ट्रक्स अवैध रेत खनन से जा रहे हैं। तीस्ता के कैनॉल के मुद्दे पर मैं आई थी, दार्जिलिंग में जब उपवास हुआ था गोरखालैंड का, तब भी आई थी। आज हमने देखा कि ये अवैध रेत खनन अगर रोकेंगे नहीं, ये अवैध क्रशर्स अगर रोकेंगे नहीं, तो जो हालत नर्मदा की हो रही है वही हालत सब जगह हो जाएगी। हमने 40,000 परिवारों को पुनर्वास तो देने के लिए मजबूर किया, 20,000 को जमीन ली नर्मदा में, एक ही बांध में। लेकिन उसके आगे चलकर नर्मदा बचाओ की बात, हर नदी बचाओ की बात करनी है तो 27 फरवरी 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और एनजीटी के 2013 के आदेशों के अनुसार अवैध रेत खनन और क्रशिंग रोकना बहुत जरूरी है। मैडम, नदियां बचेगी तीस्ता के साथ। मैं बस 1-2 मिनट और लेती हूँ और रुकती हूँ। जो चाय बागान की बात है उसका हिसाब किताब अगर आप देखेंगे तो 13 रुपए से पत्ती ली जाती है। समझो 4 किलो पत्ती मतलब पत्ता, पत्ते में से अगर 1 किलो चाय बनती है तो आप समझिए कि वो 1 किलो चाय की भी कीमत कितनी होनी चाहिए। समझो 4 गुना करो, 13 चौक करो, और उसके बाद कितने रुपए में चाय पत्ती मतलब तैयार चाय बेचा जाता है और आप खरीदते हैं, कितने गुना प्रॉफिट होता है ये आप समझिए। तो हम तो स्वामीनाथन आयोग के आधार पर एमएसपी 1 रुपये लागत पर 1.5 रुपया मांग रहे हैं। उसकी कीमत अगर लगाए तो आज कपास का मैं उदाहरण देती हूँ, मैं उस क्षेत्र से आती हूँ जहाँ कपास के हिमालय खड़े होते हैं। आज भी सैकड़ों गाड़ियां एक मंडी में खड़ी। क्या होता है 5,850 ज्यादा से ज्यादा एमएसपी है, 4,400 ही देने के लिए मजबूर करती है सीसीआई।
जो केंद्र सरकार का कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो मिल वालों के साथ गठबंधन करके एक एक गाड़ी ऑक्शन में लेने के लिए मिलों पर सौंप देता है, खुद नहीं खरीदता। मैं खड़ी रहती हूँ पूरा दिन मंडी में हमारे कार्यकर्ता समूह के साथ, तब जाकर उनको लेना पड़ता है। ये अनुभव महाराष्ट्र की आदिवासी मंडी हो या मध्य प्रदेश की समृद्ध खेती क्षेत्र, तो ये जरूरी है कि हम समझें कि लागत लाभ में न्यूनतम भी क्यों, ऑप्टिमम तो होना चाहिए, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम नहीं, लेकिन वो भी आज घोषित नहीं है। तो चाय में भी यही हो रहा है, 176 रुपया भी कमाने के लिए उनको टारगेट पूरा करना पड़ता है 15 किलो पत्ता तोड़ने। अब वो जो गरीब दलित विधवा महिला नहीं कर पाती है, तो उसको 176 रुपया भी नहीं मिलता है। हमारा ऐलान है कि तत्काल ये मिनिमम वेज जो है वो MSP घोषित करके चाहिए, तो ताकि उसका फायदा मालिक को भी मिलेगा, पर वो मजदूर के मुंह तक जाना चाहिए और उसकी मजदूरी बढ़ानी चाहिए। 176 नहीं, कम से कम 250 होनी चाहिए, जो मिनिमम वेज कई देश के जोन्स में है। और तो और ये चाय बागान में रह रहे हैं, चाय बागान की जमीन पर रह रहे हैं। ये जमीनें जैसे यहाँ आदिवासियों से ली गई थी, कई वैध अवैध रूप से ली होगी, उसकी खोज जब होगी तब इतिहास निकलेगा। लेकिन अब इतिहास खोदने के बदले भविष्य की सोचो। जो वहां रह रहे हैं, वहां की निर्मला, वहां की देविका, वहां की हेमलता क्या कह रही है कि हम बागान की जमीन पर होते हैं तो हमको ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है, ना बागान के मालिक कुछ देने को तैयार है। तो ये नो मैन्स लैंड जैसी हो गई है और इनको इसलिए न्यूनतम सुविधा रास्तों से लेकर एक PHC तक की या स्कूल तक की जो देनी चाहिए व्यवस्थित रूप से। एक भी माध्यमिक स्कूल नहीं है, किलोमीटर्स दूर है, तो बच्चे जा नहीं पाते हैं, लॉकडाउन में ही नहीं, बिना लॉकडाउन के। तो ये जो पूरी बात है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, हाथी के द्वारा इनके द्वार में पहुंचती है और ये हाथियों ने घर ऐसे तोड़े हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट तृणमूल कांग्रेस सरकार ने घोषित किया है 4 सुंदरी का, एक ही ढेंकला पारा की कुछ जमीन पर, उसमें वो घर बनाने के लिए घर बना कर देने वाले जमीन के साथ, पर वो बहुत थोड़े लोगों को है। लोगों का कहना है कि हमारी जहाँ कोऑपरेटिव बनी है, उस कोऑपरेटिव को आप चाय बागान चलाने के लिए दें। जैसे बिरला ने हमको ऑफर किए कि 2 मिल्स, सही चलो आप ले लो, आप चलाओ, हम तैयार बैठे चला देंगे, क्योंकि आखिर मजदूरी काम करता है, कोई मालिक काम नहीं करता है, उसके हाथ मिट्टी में नहीं होते। महिम लालयती थी, महिला महिला शब्द का तो अर्थ ही वो है। तो हम चाहते हैं कि जो जहाँ कोऑपरेटिव्स बनी है वहाँ, और जहाँ बन सकती है वहाँ, ये चाय बागान जो बंद पड़ी है वो कोऑपरेटिव्स को देने का एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय ममता दीदी की सरकार अगर ले लेगी, जो जन आंदोलन से उभरी हुई मुख्यमंत्री है, तो जन आंदोलनों को प्रतिसाद देकर ये काम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। तो कल हम कुछ अधिकारियों से मिले थे कॉर्पोरेशन के, ज़्यादा समय नहीं था तो ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई। ये बहुत जरूरी है, बड़े बड़े मालिकों की ज़रूरत नहीं है और कोऑपरेटिव्स को अलग अलग प्रकार से कोऑपरेटिव एक्ट के तहत नई स्कीम्स बनाकर सरकार मदद दे। आखिरी मुद्दा मैं कहूँगी कि यहाँ जो इस्लामपुर का जो सवाल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो नागरिकता के मुद्दे पर बहुत लड़ना पड़ा। मुस्लिम महिलाएं माइनॉरिटीज कही जाती है पर मेजॉरिटी बन गई आंदोलनकारियों में, और हम उनको सलाम करते हैं। उन्होंने कोई भी कानून संविधान भंग नहीं किया। संविधान भंग करके धर्म के नाम पर बाजू में करने की नागरिकता के तहत की साजिश को उन्होंने दमदार रूप से चुनौती दी। अब अमित शाह या हमारे विजय वर्गीय जी यहाँ आकर क्या कह रहे हैं मुझे पता नहीं, आज का उसका स्टेटस पता नहीं, पर इतना ही कहती हूँ कि चाहे बांग्लादेश से आए हों, चाहे ब्रिटिश सरकार ने 1900 सदी में लाकर चाय बागान में रखे हो, जो भी है इंसान है। और ये व्यापार तो अंतरराष्ट्रीय करते हैं, आत्मनिर्भर भारत बोलते हुए FDI इतने करोड़ों रुपयों का लाते हैं। अभी लॉकडाउन में 40,000 करोड़ का 9 एग्रीमेंट्स के द्वारा मोदी जी ने कर्जा लिया है। वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, AIIB सभी के द्वारा, क्योंकि हम वर्ल्ड बैंक से लड़े हैं, नर्मदा से उनको हमने निकाल दिया है, उन्होंने भी माना विनाश है।
तो ये बैंक्स क्या है हम पूरी तरह से जानते हैं। अभी अभी वॉशिंगटन में मैं गई थी, उनके बने हुए पैनल्स में क्या कह रहे हैं ये आप समझिए। वो पैनल्स भी कहते हैं कि इनके बैंक के जो मैन्युअल्स और नियम होते हैं उसका भंग करते हैं। तो ये जो करार किए हैं, अनुबंध किए हैं, वो 40,000 करोड़ कोरोना ग्रस्तों को मिलने थे, उनकी आजीविका सुरक्षा के लिए, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए। एक हमारी घरेलू नौकरानी महिला के अकाउंट में अगर 10,000 रुपए जाते तो हम मान लेते। ये बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन कर्जा निर्भर भारत बना दिया है। और उस कर्जे का लाभ भी जो श्रम निर्भर भारत है, जो गांव निर्भर भारत है, उस तक नहीं पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है। जो भी पैसा आता है, जो भी मुनाफा होता है, वो इन्हीं दो और कुछ 10 नीरव मोदी, विजय मल्ल्या 68,000 करोड़ रुपए की कर्ज मुक्ति उनको दी। और हमारा कर्ज मुक्ति किसानों को देने वाला विधेयक बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में। तो केंद्र सरकार क्या है, किसकी बनी हुई है, किसके पार्टनर्स है, इसकी खोज आज बंगाल में हर नागरिक ने जितनी जानकारी निकल सके उसके आधार पर करने की जरूरत है। हमारा संगठन का ये काम है, क्योंकि देश बेचा जा रहा है। और हम यहाँ आए थे संविधान सम्मान यात्रा में। हमारी पहले यात्रा हुई थी देश बचाओ देश बनाओ की। कोई भी सरकार हो, हम अन्याय के खिलाफ तो लड़ती है। इस्लामपुर के ये जो चाय बागान के मजदूर हैं, उनमें से भी कहीं छटे जाएंगे नागरिकता के मुद्दे पर, तो वो हमको मंजूर नहीं है। उल्टा इस्लामपुर एक जिले की घोषणा चाहता है। मुझे लगता है कि आज की बंगाल सरकार ने इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका जो इतिहास है वो जाना तो 1990-92 में ही हाईकोर्ट से कुछ न कुछ आ गया था। पर हाईकोर्ट में उन्होंने कहा भी था, और ज्यादा घोषणा भी ज्योति बसु जी से लेकर कई सारे, या विधान चंद्र राय से लेकर ज्योति बसु तक घोषणाएं की थी कि अगर नया कोई डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो पहला इस्लामपुर का बनेगा। लेकिन आज तक वो बना नहीं है। और पासारुल भाई की मैं आंकड़े समझती हूँ बांग्ला में कि अगर 200 किलोमीटर दूर गांव से जिला का स्थान है तो उनको देने में कोई दिक्कत नहीं है। विकेंद्रीकरण के तो हम पक्ष में हैं। हर गांव को भी स्थान सम्मान 243वां अनुच्छेद है, आर्टिकल 243 आप पढ़िए। हर गांव को विकास का प्लान पहले बनाना है, फिर पंचवार्षिक योजना बन सकती है। मॉन्टेक सिंह आहलूवालिया वाज कंपेल्ड टू इशू notices come letters to every chief secretary in India asking them to send the village development plans, जिसके ऊपर से हम 11 5-year प्लान बनाएंगे, ये उनका कहना है। उस समय प्लानिंग कमीशन में हमारा सहभाग भी होता था, कहीं ना कहीं वर्किंग ग्रुप्स में हमको लेते थे। वो संवादशील सरकारें थी। अब की सरकार, मोदी सरकार संवाद तो करती नहीं है, संवेदना भी दिखाती नहीं है, केवल घोषणा करती है कि मंडी बनी रहेगी, एमएसपी बनी रहेगी, और उस पर कानून नहीं बनाती है, कानून विरोधी बनाती है। तो ये जो हकीकत है उसमें इस्लामपुर के जिले की मांग करने वालों को भी हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय का पूरा समर्थन है, क्योंकि ये विकेंद्रीकरण का मामला है, केवल राजनीतिकरण का नहीं। मैं इतना ही कहकर एक और ही बात, एक ही मुद्दा करती हूँ। उत्तर बंग मत्स्यजीवी फोरम, जिसके प्रदीप चटर्जी, सौमेंद्र राय हमारे NPM के समन्वयक है, आज वो आते आते उनको दूसरे मीटिंग नहीं कैंसिल करना संभव हुआ, पर परसों वो हमारे साथ ही पूरे चाय बागान में घूम रहे थे। हमारी भी नर्मदा में 42 कॉपरेटिव्स है, फिशिंग कॉपरेटिव्स। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम हमारा नेशनल अलायंस का हिस्सा है, इसलिए फिश वर्कर्स के भी हर मुद्दे पर कोस्टल एरिया में जाकर हम लड़ते हैं। कोस्टल की बात अलग है, ये जो रिवराइन फिशरीज है, नदी में जीने वाले, और उनमें ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स है, उसमें फिशर्स है, फिश वर्कर्स है, महिला फिश वर्कर्स है, इनके लिए विशेष मांगे हैं, खास करके हर एक मत्स्य जीवी का और हर एक उनके बोट का आधार